Hello, my friends, welcome. In this class, we are going to see cyber security, and along with the theory, we are going to see MCQ questions also. So, this PDF we will refer, and after that, we are going to see the thing like what are the cyber security basics and vulnerabilities, threats, and attack, then uh, warfare, what are the laws and cyber forensic, then mobile and wireless, then social media, and then we are having some privacy attacks like this, and then we will see some MCQ questions which are very very important from exam point of view जहाँ पे exam में questions पूछे. Then we are having some basic questions also. So here these MCQ questions also we are going to cover, and then we will see the difference between symmetric and asymmetric क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि एग्जाम में इससे भी आपके जो है क्वेश्चंस वो आपके आ जाते हैं. At any point of time, if you have any doubt, you can unmute and you can let me know. Okay. So first we are going to see the theory part, and after that we will see the MCQ. Because हम अगर direct MCQ question देखें, you may not able to understand some of the parts. First we will see the theory, then we will see the MCQ. So whatever the exam you are going to give, maybe you are going to give the examination of IBPS. Maybe you want to give the examination of CB, maybe you want to give the examination of NABARD, maybe you want to give the examination of NICL या OACL. आपका कोई भी एग्जाम है, अगर एग्जाम में अगर नेटवर्क है, if the in your syllabus if network is there, if it is there, then for sure network security is automatically is included here. So जो network, it is a big part. In that we are having a sub part, we can say network security or we can say cyber security. Okay. So I want you to please pay attention. So from very basic we are going to start, and little by little we will move ahead. So as you know that in this era of cyber, so everything is like internet. तो आज हम जैसे इंटरनेट देखते हैं, तो इंटरनेट पे क्या है, हर चीज आपकी एक्सेस है. आजकल आप जैसे यूपीआई वगैरह भी आप करते हो, आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो, इंटरनेट बैंकिंग है, आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास में लैपटॉप है, उस पे क्या आपका इंटरनेट है. तो जहाँ पे इंटरनेट है, जहाँ पे कोई भी फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी के साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी आ सकते हैं. तो क्या चीज है, हम कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो सब चीजें अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे. So first we need to protect. So what are the things that we can protect? So first we have to protect our system. So how we can? So by updating. So by updating our software, we can update our, we can say protect our system. We have to take the backup. So why backup is important? जैसे एक अटैक होता है ransomware. इसमें होता है क्या है कि दोस्त, आपके जितने भी फाइल्स हैं, जितनी भी आपके सिस्टम में फाइल, आपके जैसे सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, जो भी ये सिस्टम की फाइल हैं, दे ऑल बीन इनक्रिप्टेड. तो वो क्या करेगा, सब फाइल को इनक्रिप्ट कर दे. जितनी फाइल इनक्रिप्ट करेगा, इट विल आस्क फॉर मनी. हो सकता है कि वो आपसे 1 CR मांगे कि भैया इफ यू वांट टू डिक्रिप्ट द फाइल गिव मी 1 CR. इफ यू हैव रेगुलरली टेक द बैकअप ऑफ द फाइल, अगर आपने रेगुलर बैकअप ले रखा है, तो आप बोलोगे भैया मैं 1 CR तेरे को कुछ नहीं दे रहा, I will format this system. I will format this system and I will restore my all files from the backup. That's why secure of the file is bad. ये एक example है. There are lots of, we can say, advantage of having a backup. Then everything you can include with a पासवर्ड. जैसे आप अपने लैपटॉप ऑन किए, जैसे आपने लैपटॉप ऑन किया, उसमें भी आप क्या लगाते हो, उसमें भी आप लगाते हो एक पासवर्ड. कुछ एप्लीकेशंस है, उस एप्लीकेशंस में आप फिर से आप लगा सकते हो पासवर्ड और पिन लगा सकते हो. Or you can also encrypt your data. Also you can encrypt your data, whatever the data you are having, you can also store as encrypt. So whenever you want to view the data, you have to enter the specific password to decrypt the file. Or you can use the multi-factor authentication. So what is the multi-factor authentication? मान लो कि you want to log in the Gmail, आपको login है करना, Gmail login करना. So what you will do, you will enter the user ID and you will enter the पासवर्ड. तो दिस इज वन. प्लस फिर वो बोलेगा कि ओटीपी बता दो, आपके फोन पे ओटीपी है, ओटीपी बता दो. दिस इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन दैट यू कैन ऑल्सो ऐड.
सो ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपनी चीजों को सिक्योर कर सकते हो, बट कोई भी 100% आपको नहीं बोलेगा कि आपका 100% गारंटी, क्योंकि साइबर चीज ऐसी, इसमें दे आर लॉट्स ऑफ अपडेट। ठीक है, so now maybe you are having a router in your system, so in that you have to include the VPA2। अब क्वेश्चन आपका इससे भी आ जाता है, भैया VPA2 क्या है, VPA3 इंक्रिप्शन क्या है, क्वेश्चन इससे भी आ जाता है। आपके पास कोई स्मार्ट है डिवाइस और यू आर हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन, सो यू हैव टू ट्रेन द स्टाफ की, भी उसको बताना है कि क्या साइबर सिक्योरिटी, अगर कुछ हो जाता है तो आपको कैसे उस चीज को मिटिगेट करना है, या अगर कुछ हो गया है तो आपका रिस्पॉन्स प्लान क्या है। तो वो सब चीजें आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट आपका जो साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है वो क्या कहता है, फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई, आपको रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी इन योर सिस्टम, इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू गिव द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू नीड टू प्रोटेक्ट, द सिस्टम बाय मीन्स, उस पर आप कुछ लेयरिंग्स आप लगा सकते हो। देन यू हैव टू चेक द सिस्टम, अगर कहीं पे भी अनयूज चीजें आती है, सो यू आर चेकिंग समवेयर, अगर कुछ भी आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ अनऑथराइज एक्सेस हुआ है, देन यू हैव टू हैव अ रिस्पॉन्स प्लान, व्हाट यू नीड टू डू द नेक्स्ट, अगर कुछ अटैक वटैक हो गया है तो हाउ यू कैन रिकवर द डेटा। सो ये सब चीजें हैं, ये आपके रहती है। अब जैसे आपके सिक्योरिटी के अंदर आता है फिजिकल सिक्योरिटी, अब जो फिजिकल सिक्योरिटी है उसमें भी जैसे वन एग्जांपल यू कैन टेक, कि आपके पास में कोई है सर्वर रूम, ठीक है, तो आपने यहाँ क्या लगा दिया, सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया, आपने यहाँ क्या बैठा दिया, सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया, तो कोई भी यहाँ इस सर्वर रूम को एक्सेस करना चाहता है, सो दिस सिक्योरिटी गार्ड विल अगेन check your identity card। So let's suppose this is a building of TCS। ठीक है, तो यहाँ पे let's suppose we are having 10 floor, तो यहाँ पे एक अलग से रूम है आपका सर्वर रूम। सो अगेन वी आर हैविंग द सिक्योरिटी गार्ड हु इज sitting at the door, so you have added one more, so what this security, this is a physical, or you can implement a biometric device, तो उसमें भी आप लगा सकते हो। ठीक है, और you can have some keys or like this, so these are the things we can have। ठीक है, सो अब इसमें चीजें रहती है कि आपके जो एम्प्लॉयज वगैरह यू नीड टू ट्रेन देम। ठीक है, सो एग्जाम में क्वेश्चन रैंसमवेयर का आ जाता है, सो मे बी इफ यू डोंट नो अबाउट द रैंसमवेयर यू कैन गूगल इट, बट यही है, रैंसमवेयर में होता है कि ही इज गोइंग टू एन्क्रिप्ट ऑल द फाइल एंड ही विल आस्क फॉर द मनी इफ यू डोंट। सो रैंसमवेयर इट्स लाइक फिरौती, तो ये क्या आपका फिरौती है, दिस इज अटैक विच हैपन। ठीक है, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट लाइक दिस। सो अब क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आपके फिशिंग से भी आ जाते हैं। लेट सपोज यू आर हैविंग ए ईमेल, सो आपको कोई ईमेल आ गया, लेट सपोज कि आपको ईमेल आ गया, यू विल गेट दिवाली गिफ्ट फ्रॉम द योर ऑर्गेनाइजेशन, लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन TCS, तो ये लिंक दे दें, क्लिक हेयर टू क्लेम द गिफ्ट। अब आप उसमें फ्रॉम में देखोगे वो TCS नहीं है, इट विल बी सिमिलर ईमेल, so this is a phishing email, so it look legitimate but you have to look at very very carefully, देन ओनली यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, अदरवाइज आपको लगेगा ठीक है ईमेल आया या और कुछ ईमेल आ गया, सो आपको लगता है कि ठीक है आई वॉन्ट सम लॉटरी, सो उसमें भी क्या है, फिशिंग है, इट्स लुक रियल बट इट इज नॉट रियल, इट्स लुक रियल, सो यू हैव टू चेक केयरफुली। ठीक है, ठीक है, तो आपको ईमेल ईमेल ऑथेंटिकेशन अपडेट वगैरह आप लगा सकते हो। एंड स्कैम्स, तो आजकल जैसे स्कैम्स वगैरह बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आजकल जो स्कैम हो रहा है वो सबसे ज्यादा हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट वो बहुत ज्यादा आजकल हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट। तो यू विल रिसीव अ फोन कॉल, सो आपको जैसे फोन कॉल आएगा एंड ही विल से ही इज फ्रॉम पुलिस, he will say he is from inspector of police or he is from CBI, like this he will pretend, and he will say that we have found some illegal substance and we have also find your Aadhaar card with that system, so he will pretend that he is from that system and he will ask for some money। so ऐसे स्कैम्स वगैरह भी आते हैं। आजकल हो क्या गया, आजकल AI से होने क्या लग गया है, वॉइस वॉइस कॉल spam। So what he will do, let's suppose you are living outside, let's suppose you are from UP and your parents live in UP, Uttar Pradesh, but you work in Bangalore, so a guy who know you, so he will clone your voice, ये क्या करेगा, आपकी जो वॉइस है इसको क्लोन करेगा, he will clone your voice and he will make a phone call by using some
social engineering, he will get the phone number of your parents. So he will, by using the your voice clone, he will call your parents, and they will think that you are making the call, but in the actual someone else is making the call. He will say, and they will think that you met with the accident, or you are in a police station, you have done something wrong. Then they will ask for the money, but they will think that because you are making the phone call from the different number, so like this they can clone the voice. So आजकल बहुत सारी चीजें आ रही है, तो उसमें बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह भी आपके हो रहे हैं। ठीक है, सो एक एग्जांपल है, कैंप्स वगैरह भी हो गया है। फिर अभी क्या है, आपके साइबर इंश्योरेंस भी आने लग गए। सो जितने भी होते हैं बैंक्स, एवरी बैंक इज हैविंग अ साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो किसी बैंक का हो सकता है 100 CR का हो, किसी बैंक का 1000 CR का भी हो सकता है साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी। सो लेट सपोज कुछ अटैक वगैरह होता है, अगर इनको डेटा लॉस होता है, सो द इंश्योरेंस अमाउंट इज गोइंग टू बी पे बाय द इंश्योरेंस कंपनी, सो दे हैव टू पे सम प्रीमियम अमाउंट ऑन दिस इंश्योरेंस। ठीक है। अब होता है क्या है कि वेंडर सिक्योरिटीज ऑल्सो, सो लेट सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक, so in your bank the bank is having a tie up with so many vendors, so you have to also check कि कहीं से मेरा डेटा लीक तो नहीं हो रहा, everything that you have to play also। ठीक है, तो इसमें इतनी ही चीज थी, इसका कोई मतलब नहीं है, अपन ने बस बेसिक बेसिक देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें अपन देखेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी दिस थिंग, एंड आफ्टर दैट वी विल सी द एमसीक्यू, जो जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन। ठीक है, तो वो जो अपन है चीजें वो देखेंगे। ठीक है, तो इतना आई होप इट इज नाउ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव अहेड, नाउ लेट्स लुक एट द अनदर टॉपिक। Okay, so I have explained is cyber security, and I hope it is easily clear to you. Okay, so one PDF we have seen. So this is our second PDF. This is our second PDF. Okay, so साइबर सिक्योरिटी ठीक है, इसमें कुछ है नहीं जो इंपॉर्टेंट चीजें, बस मैं वो बताता हूँ आपको। ठीक, अब जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। सो व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स? सो यू कैन encrypt your data, you can enable the two factor authentication, you can also enable the biometric verification, or you can enable the security tokens also। so what is the security code? एक पेन ड्राइव होगी, उसमें आपका रहेगा टोकन विल बी स्टोर, सो whenever you want to log in, so you have to insert that pen drive। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक एग्जाम में आता है क्वेश्चन, यहीं से मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आता है CIA। एग्जाम में वो बहुत बार पूछ लेता है व्हाट इज CIA, और विच ऑफ द थिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द CIA। हो सकता है कि MCQ दे दे, हो सकता है कि MCQ दे दे, एंड ही विल आस्क लाइक दिस, एंड वी आर हैविंग द CIA, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIA? So like this, so he will give you some options, so you have to remember। so CIA क्या होता है आपका साइबर सिक्योरिटी में? C stand for confidentiality, it means your data should be visible to authorized user only। so data should be visible to the authorized user only, not to everyone, this is the confidentiality, this is the C। okay? उसमें कौन कौन सी चीजें आती है? आपके डेटा इंक्रिप्शन, टू फैक्टर बायोमेट्रिक, देन वी आर हैविंग द इंटीग्रिटी, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहीं पे, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी। सो इंटीग्रिटी मीन्स द डेटा विच एवर यू हैव स्टोर्ड इट शुड बी द सेम। आज आपने देखा कि इन योर अकाउंट दिस इज 100 रुपीज, एंड in the night you have seen in the morning, then once you wake up and then again you are going to check your account balance, it should be 100 रुपीज। ऐसा नहीं है कि 99 रुपीज हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि 101 रुपीज हो जाए, द डेटा शुड बी सेम। अगर किसी ने रुपए दे दिए हैं वो अलग बात है, बट डेटा वही होना चाहिए, डेटा शुड नॉट चेंज। आज आपका नाम राम है, सो अगले दिन भी आपका नाम राम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि राम से आपका नाम श्याम हो गया हो। ठीक है, ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए। दिस इज द इंटीग्रिटी। So in integrity, what are the things major? So in integrity, what are the things we can have?
ठीक है। अब अगर एग्जामिनर को हाई लेवल क्वेश्चन पूछना, ये तो था कि बेसिक लेवल वो पूछ लेगा फुल फॉर्म सीआईए, और इसमें क्या है, अब हाई लेवल में वो क्या पूछेगा, ओके यू नो अबाउट सीआईए, नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट इंक्लूड इन सी, सी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ही विल गिव यू ऑप्शन वन। ऐसे ऑप्शन वन में इसमें लिख दिया डेटा इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन। ऑप्शन बी में लिख दिया सिक्योरिटी टोकन। ऑप्शन सी में लिख दिया ड्यूल ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन डी में इसने लिख दिया बैकअप, ये लिख दिया। अब आपको इसमें टिक करना है बैकअप, बिकॉज इन सीआईए सी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, सो यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद करनी पड़ेगी, यू हैव टू रिमेंबर सी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सी। सी मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी। अब उसमें कौन कौन सी आ रही चीजें, सो इट मीन्स द डेटा शुड नॉट बी विजिबल टू द अनऑथराइज्ड यूजर, बस ये चीज इसमें आती है कि जो डेटा है इट शुड नॉट बी विजिबल टू द अनदर यूजर। यस, गुड। देन वी आर हैविंग द आई। आई में कौन कौन सी चीजें आती है, यू हैव टू रिमेंबर दोस्त, वरना आपको लगेगा कि यार ये चीज भी है ये भी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे ना, जब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे आपको ऑप्शन सिमिलर मिलेंगे, ऑप्शन लगेगा हाँ यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आई में, आई का मीन्स क्या है, डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो इंटीग्रिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्रिप्टोग्राफी चेकसम लगा सकते हो, फाइल परमिशंस लगा सकते हो, यूपीएस लगा सकते हो, डेटा बैकअप लगा सकते हो। ये इससे क्या होगा, आपको इंटीग्रिटी के अंदर गारंटी मिलेगी। Then we are having the availability. Availability. A for availability. It means data should be available for you 24/7. हमेशा आपको डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि जब मन किया आप उस टाइम डेटा को देख सकते हो। ठीक है। अवेलेबिलिटी में होगा क्या, कि मान लो किसी ने अटैक हो गया, डीडोस अटैक लगा दे किसी ने, ठीक है। अब इससे होगा क्या, अब इसमें एग्जामिनर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो उसने, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, लेट सपोज यू आर ओनर ऑफ, लेट सपोज HDFC बैंक.com, ठीक है, ये आपके पास में वेबसाइट है, HDFC की ओनर, एंड वी हैव मेड अ DDoS attack by some criminal. So in the CIA which is going to be effect, तो जब DDoS अटैक हुआ तो इस CI में से कौन सी चीज इफेक्ट करेगी। आपको पता है कि DDoS अटैक क्या होता है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द DDoS है। तो DDoS अटैक इज डिनाइल ऑफ सर्विस, इट मींस योर सर्विस इज नॉट अवेलेबल। आप बोलेगा कि वेब पेज नॉट फाउंड एट सम, और वो बोलेगा सर्वर एरर, लाइक दिस इट विल गिव। सो कौन सी चीज इफेक्ट हो रही है सीआई में, ए इफेक्ट हो रहा है, कौन सी ए इफेक्ट हो रहा है, तो यू हैव टू टेक ए इज गोइंग टू बी इफेक्ट इन दिस अटैक। तो डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स में कौन कौन सी चीजें इफेक्ट हो रही हैं, तो वो चीज आपको देखनी है। ठीक है। अब मैं जैसे आपको ये बताता हूँ, फिशिंग अटैक हुआ, एक अटैक हुआ फिशिंग अटैक। अब मुझे बताओ फिशिंग अटैक में सीआईए के अंदर कौन सी चीज इफेक्ट होगी। लेट सपोज देयर इज फिशिंग अटैक, सो विच थिंग इज गोइंग टू बी इफेक्ट, इंटीग्रिटी। यस, इंटीग्रिटी इफेक्ट होगी, क्यों, इंटीग्रिटी, नहीं इंटीग्रिटी में नहीं होगी, इंटीग्रिटी में जो, हाँ इंटीग्रिटी भी हो सकती है, यस इंटीग्रिटी कैन बी ऑप्शन, तो इसमें आपका सॉरी सी एंड आई दोनों इफेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि सी कहता है कॉन्फिडेंशियल, सो बाय फिशिंग अटैक किसी को आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल गया, तो वो अथोराइज नहीं था, उसके बिहाफ पे सी भी इफेक्ट हो गया, और उसने हो सकता है कि सम चेंजेस कर दिए, तो सी एंड आई बोथ इज इफेक्टेड, बट ए इफेक्ट नहीं होगा, अवेलेबिलिटी इफेक्ट नहीं होगा। सो अब इसलिए आपके क्या है, जो साइबर अटैक्स है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस वहां से भी आ सकते हैं। सो एग्जामिनर कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम साइबर अटैक आल्सो। Moving ahead, so for the cyber attacks, different type of cyber attacks, so there are approximately 30 plus attacks. So for that we have made a separate video, so that video you can watch, in that we have explained what are the different type of attack and what happen in which attack। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट अटैक है उसको अपन फिर से देख लेंगे। ठीक है। अब आजकल दो अटैक्स होते हैं आपके, वेब बेस्ड अटैक हो सकता है एंड सिस्टम बेस्ड अटैक हो सकता है। तो वेब बेस्ड अटैक्स में कौन कौन सी चीजें आती है, इंजेक्शन अटैक्स। सो इंजेक्शन में क्या होगा, इंजेक्शन में जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन कोड हो गया,
लॉग इंजेक्शन है, एक्सएमएल इंजेक्शन है. सो इट मीन्स आई एम हैविंग ए वेब पेज. एक वेब पेज है, मान लो कि हम जैसे लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट. स्टूडेंट वेयर, वेयर में हमने अब क्या लिख दिया, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 11. अब ये 11 की जगह ये क्या लिख देगा, ये रोल नंबर में लिख देगा 1 और 1. तो व्हाट हैपन इन दिस 1 और 1, सो इट इज गोइंग टू बी द एसक्यूएल. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये है अपने पास, मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर आईडी वेयर यूजर आईडी एंड दिस. ठीक है. सो लेट सपोज यू हैव अ लॉगिन पेज, यू आर हैविंग अ लॉगिन पेज. इन दिस लॉगिन पेज यू आर गोइंग टू चेक योर यूजर आईडी. भाई जहां पे वो यूजर आईडी मिल रही है वो रो उठा के लेके आओ. अब इसने यूजर आईडी की जगह इसने लिख दिया 1 = 1. सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू. तो वो क्या करेगा, कंप्लीट टेबल विल बी डिस्क्लोज. तो आपकी पूरी की पूरी टेबल आ गई. तो इससे होगा कि आपका डेटा लीक हो जाएगा, इससे होगा कि आपका डेटा लीक हो जाएगा. तो लाइक दिस मैंने यहाँ पे लिखा यूजर आईडी इज इक्वल टू 105 और 1. तो ये चीज ऐसे एग्जीक्यूट होगी, कंप्लीट कंप्लीट टेबल इज गोइंग टू बी एक्सपोज. तो आपने कुछ अटैक्स वगैरह देखे होंगे, जैसे आपने कुछ अटैक्स देखे होंगे कि जैसे अभी एक अटैक हुआ था जोमेटो में हुआ था फ्यू इयर्स बैक. मुझे याद नहीं 2000 किस में हुआ था, 2022 में अटैक हुआ था या 2020 में हुआ था. सो उसमें हुआ क्या था कि जितने भी कस्टमर्स थे उनके जो क्रेडिट कार्ड थे, उनकी जो थी ना टेबल, क्योंकि बिकॉज ऑल द डेटा इज गोइंग टू स्टोर इन द टेबल, वो एक्सपोज हो गई थी. वो क्या हुआ था, वो एक्सपोज हो गया था. तो यहाँ से क्या हुआ था, जो आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो एक्सपोज हो गई थी. तो ये भी क्या हुआ, तो दिस सम काइंड ऑफ अटैक्स, बिकॉज ऑफ दैट योर डेटा इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड. ठीक है. तो इसमें एक्सपोज हो गया. तो एसक्यूएल इंजेक्शन के अटैक्स होते हैं. ठीक है. अटैक अपन को अटैक नहीं करना है, वी डोंट हैव टू अटैक, बट ऐसी चीजें हैं कि हम देख रही हैं. अब किस में ऐसा भी हो सकता है कि उसने उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं ली, बट उसने अब क्या कर दिया, आपको जो डेटाबेस है उसको ड्रॉप कर दिया. तो उसने जो आपका यूजर आईडी था, जहां यूजर आईडी एंड पासवर्ड का द लॉगिन पेज दैट यू हैव, इन दिस लॉगिन पेज ही हैज मेंशन ड्रॉप टेबल सप्लायर्स. तो आई विल गिव यू सम एग्जांपल. जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लगाता हूँ फेसबुक लॉगिन पेज, मैंने बना लिया. ठीक है. मैंने ये ओपन किया फेसबुक लॉगिन पेज. तो ये यूजर आईडी है. तो यूजर आईडी मैंने ये लिख दिया ड्रॉप टेबल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजर्स. सो अब अगर इसने इस जो इंक्वायरी है, इफ ही इज नॉट validate or he's not doing some validation or filtering of the data, so someone can attack and he can insert some information, and from where his user is information is going to be bypassed. तो मैंने यहाँ से लिख दिया 1 और 1 और 1 on 1, so like this. So it can create problem also. ठीक है. पर यहाँ पे उन्होंने लगा रखा है वैलिडेशन, तो इससे कोई आपकी दिक्कत दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आएगी. एनी अदर डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क इट. कोई भी आपका डाउट हो प्लीज लेट मी नो. ओके. लेट्स मूव अहेड. नाउ वी आर हैविंग द डीएनएस अटैक. ये भी आपके बहुत सारे अटैक्स होते हैं डीएनएस. सो व्हाट हैपन, तो आपका जैसे ईआरपी जैसे आपका रहता है डीएनएस. तो आज मैंने पिंग किया, इसको किया गूगल.com. गूगल.com, अब गूगल.com का एक नेम है. तो दिस डीएनएस अब क्या करेगा, इस नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करेगा, एंड दिस आईपी एड्रेस गोइंग टू बी गिव मी, बिकॉज द सर्वर, कोई भी सर्वर है, इट इज गोइंग टू बी होस्ट एंड दैट इज गोइंग टू हैव द आईपी. तो द अटैकर, व्हाट ही विल डू, ही विल चेंज दिस आईपी टू ए फेक आईपी. तो वो क्या करेगा, आपको फेक आईपी दे देगा कि भैया यही गूगल का है सर्वर, एंड ही विल गिव यू लॉगिन पेज ऑफ द जीमेल. तो जैसे ही उस जीमेल के लॉगिन पेज पे, फेक पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा. ही विल गिव यू फेक लॉगिन पेज, एंड वेयर यू आर गोइंग टू एंटर द यूजर एंड पासवर्ड, एंड ही विल गेट द यूजर एंड पासवर्ड. सो लेटर आपको लगेगा कुछ इश्यू आ गया, तो अगेन ही विल गिव यू द रियल आईपी एड्रेस. अगेन वंस यू लॉग इन यू विल एबल टू लॉग इन. सो आपको लगा कुछ इश्यू था, but he has stored your information, so later on he can misuse it also. तो ये आपका DNS स्कूपिंग अटैक्स है.
सेशन हाईजैकिंग ऑल्सो है, फिशिंग अटैक है, ब्रूट फोर्स अटैक है। तो इसको भी हम बोल सकते हैं आपका डिक्शनरी अटैक। इसमें बोला जाता है कि वीक पासवर्ड नहीं रखना, यू डोंट हैव टू कीप द वीक पासवर्ड, यू डोंट हैव टू कीप द वीक पासवर्ड। व्हाई? दिस आई विल शो यू। डिक्शनरी अटैक ऑफ द वीक पासवर्ड। तो for this what we will create, we will create a word list, we will create a word list. In this word list we are going to have thousands of predefined combination passwords। so हो सकता है कि आपका कुछ भी नाम हो @123 @456 like this। so we are having thousands and thousands of word, and then one by one we are word going to pick and we will do the hit and trial, hit and trial, hit and trial। so until unless we are going to get this your password। so अपन जैसे डिक्शनरी क्या कर सकते हैं, वर्ड लिस्ट। so here we can have this file। so it is a file, it is of 50.9 MB। इसमें आपके thousands and thousands of word है। so we can take this and one by one we can try with the words and then we are going to identify कि आपका क्या वीक पासवर्ड था। अब जो वीक पासवर्ड जो इसमें डिक्शनरी में होगा वही इसमें देखा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। then we are having the नैन ऑफ सर्विस अटैक, वॉल्यूम प्रोटोकॉल एप्लीकेशंस लेयर आपके अटैक्स होते हैं, डिक्शनरी अटैक है, यूआरएल इंटरसेप्टर्स वगैरह है। तो आप जो भी कोई वेबसाइट वगैरह देखो तो उस पे आपको देखना है कि भैया यूआरएल उसका सही है या नहीं है। फाइन क्लोजिंग अटैक है, मैन इन मिडल अटैक है। तो देयर इज अ गाय हु इज गोइंग टू बी सिट बिटवीन योर वेब सर्वर एंड दिस इज अ क्लाइंट। तो दिस इज मैन इन, कोई भी चीज हो रही है ही नो व्हाट एवर द थिंग इज हैपनिंग। ठीक है, तो दीज आर द अटैक्स। देन वी आर हैविंग सिस्टम बेस्ड अटैक। तो सिस्टम बेस्ड अटैक में क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या जो नेटवर्क है इट इज गोइंग टू बी डाउन। so it is going to be down, so where we can have the attack। so उसमें क्या होगा आपका वायरस, we can have worms, we can have trojan horse, we can have backdoors, we can have the bots like this। ठीक है, अब इसमें कुछ we are having the layers of cyber security। so ह्यूमन लेयर है, उसके बाद में पैरामीटर है, नेटवर्क लेयर है, एंड पॉइंट है, एप्लीकेशन है, डेटा है, उसके बाद है आपका मिशन क्रिटिकल असेट्स। तो जो असेट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका है डीबी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। अगर ये बाहर हो गया देन द होल कंपनी इज गोइंग टू बी डाउन। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में जैसे लेता हूँ आधार कार्ड, you all are having the Aadhaar card। So Aadhaar card, all citizens of India Aadhaar card is stored in a server। आपका किसी ना किसी सर्वर में स्टोर है। अब ये जो सर्वर है किसी न किसी जो आपका डेटाबेस है वहां पे स्टोर है। अब किसी ने अटैक किया और ये इसने मान लो कि आधार कार्ड की डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल ली, तो इससे क्या होगा, वी कैन हैव द सो मच ऑफ मिस यूज। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होंगे, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होंगे, दे विल बी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी ऑन द आधार कार्ड डीबी। ओके, अब इसमें जो जो चीजें हैं वो चीजें भी देख लेते हैं।
जो मिशन क्रिटिकल असेट का द डेटा दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट, सो सबसे लास्ट में आपका वो होगा। इसके ऊपर आप क्या लगाओगे, इस पे सिक्योरिटीज लगाओगे, इसको बचाने के लिए आप यहाँ पे देखो, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं है जो 100% कहती है इट इज ट्रू। सो बट वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू प्रोटेक्ट अवर डेटा, we have to. So the first is critical, then we can have the data security, then on the over that we can have the application security, over it we can have the endpoint security, or we can say then we have the network security, then we can have the parameter security, over it we can have the human layer। ठीक है, आपको कोई ह्यूमन लेयर वगैरह भी आपको लगानी है, उस पर भी आप लगा सकते हैं। तो नाउ वी आर हैविंग सम cyber threats from which we have to be protect, in which we are having some phishing attack, we are having the uh, data breach, or we can have the malware attack। अब इसमें जो आपकी vulnerabilities है, what are the vulnerabilities we are having? So if some attack is happen, अगर कहीं पे भी अटैक होता है तो क्या होता है, आपका सीआईए लूज हो जाता है, सीआईए लूज हो जाता है, इट मीन्स लॉस ऑफ इंटीग्रिटी। तो जो कस्टमर का ट्रस्ट है वो आपका लूज हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो जाएगा, एंड लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी। लेट सपोज क्या यू आर गोइंग टू यूज द गूगल ड्राइव, यू ऑल हैव द गूगल ड्राइव एक्सेस, ठीक है, आपके पास में गूगल ड्राइव की है, or maybe you are having some Instagram, maybe you are having some Insta, so you are having some private photo that you have uploaded here, ठीक है, आपने कुछ भी आपका कोई भी है डेटा है that you don't want to show to the world, that you don't want to show to the world, you don't want कि this data should be visible to the complete world। Now let's suppose there is some attack, and because of that attack, whatever the data stored in Instagram, whatever the data stored in Google Drive, it got disclosed, and this data is available to the whole world। So what impact is going to create on a Google? अब Google पे देखो कितना negative impact करेगा। So the Google is going to lose the trust of the customers। So just because is the Google is, every organization is paying and spending a lot of money just to protect the data, just to protect the data, just to protect the CIA। Okay। अब इसमें कोई भी आपका अटैक्स होता है, सो देर आर टू टाइप ऑफ अटैक, फर्स्ट इज योर एक्टिव अटैक, सेकंड इज योर पैसिव अटैक। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो आपका एक्टिव इफेक्ट ही इफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा एक्टिव। अब इसमें क्या होता है कि सम इंसिडर और ऑल्सो, सो मे बी फ्रॉम द इनसाइडर, सो मे बी हो सकता है कि देयर इज सम एम्प्लॉय ऑफ द गूगल हु गॉट पेड। मान लो कि मैंने बोल दिया कि आई विल गिव यू 10 CR, जस्ट गिव मी द वीक पॉइंट, जस्ट, एंड ही इज वर्किंग इन गूगल, so he is working in TCS, maybe is working in Wipro, because this is the employee। अब employee के लिए this is a big amount। let's suppose कि मैंने इसको बोल दिया I will give you 100 CR, so it can also leak the data, so it is a insider or a outsider also, outside the organization also, so we have to protect our data from inside or outside also। CIA trend we have discussed, so this is important। asset क्या है, the data that you want to protect, that is asset। ठीक है, the data that you want to protect, that is asset। see after that we will see the MCQ। जब हम MCQ देखेंगे उस टाइम डोंट से कि सर ये चीजें मेरे ऊपर से जा रही है। once we are going to see the MCQ, then don't say कि things are going above my head। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे दोस्त। टेंशंस हो सकते हैं, देर सो मेनी टाइप ऑफ इंटेंशन अटैकर कैन हैव। ठीक है, अपन को उतने ज्यादा इंटेंशंस में नहीं जाना है। ठीक, तो misquoted। In this attack, the intruder pretended to be a particular user of the system to gain the access or to gain the privilege of that are authorized. For a misquoted may be attempt to the use of stolen user ID and password through the finding security gate in program। Then session replay attack। तो हम कौन सा देख रहे हैं, एक्टिव अटैक देख रहे हैं, इनएक्टिव अटैक, सेशन रिप्ले अटैक। So, someone steal your session, and by stealing the session, he is using your session ID, and that's what other will think। So, हमेशा आपको बोला जाता है कि whenever you have login, always log out, always log out। कोई भी आप इन
कोई भी आप बैंक रिलेटेड कोई भी आप एक्टिविटी करो, मे बी यू हैव लॉगिन इनटू इंटरनेट बैंकिंग and mobile banking. That's why it is always say that whenever you have doing any financial transaction, or maybe you are using Facebook or Instagram, anything, always log out after the work is done. Always log out, because maybe your session can be hijacked. You never know. So आपको लगेगा कि ठीक है मेरा काम हो, but the session is active and maybe it can be used by some other also. ठीक है. Then we are having the DDoS अटैक, दोनों एक ही चीज है. फिर अपना है पैसिव अटैक. पैसिव अटैक relatively scary from the classification perspective, but it is carried out with the respective age, particularly in the traffic that are not encrypted. अब इसमें देखो आपकी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ में आती है. eavesdropping, this is tapping. Attacker simply listen to the message exchanged by two entities. For the attack to be useful, the traffic must not be encrypted. Any unencrypted information such as password sent over the HTTP request may be retrieved by the hacker. ठीक है, कोई भी इसमें HTTP किया है तो आपको देखो, आपको होना चाहिए पता है HTTP, HTTP, इसका व्हाट इज द पोर्ट नंबर 80, HTTPS. एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ HTTPS? अब एस में क्या होता है, देर इज अ सेल सिक्योर सॉकेट सेल, सिक्योर सॉकेट सेल. सो आई विल शो यू द सेल. रिमेंबर? ओके, नाइस नाइस. अब जैसे एक वेबसाइट है, आई विल शो यू, दिस इज द वेबसाइट. अब इसने बोल दिया दिस कनेक्शन इज सिक्योर. अब हाउ इट इज सिक्योर? नाउ यू कैन सी it is having the encryption of SHA-256. SHA-256 encryption is there, and this is the detail of the certificate, and it is having a HTTPS connection. So whatever the data you are going to receive or you are going to send, all data is going to be encrypted. All data is going to be encrypted. जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कि आप क्लाइंट हो, ये क्लाइंट है और यहाँ पे आपका है सर्वर. आप यूज कर रहे हो HTTP. आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखा, आपने लिखा हेलो. अब ये जो हेलो वर्ड है ये डायरेक्ट आपका जा रहा है, डायरेक्ट इट इज गोइंग ओवर द इंटरनेट. ओवर द इंटरनेट हो सकता है. सो मे बी यू आर इन इंडिया और ये जो आपका है सर्वर, इट इज इन यूएसए. so this is going as a plain text, but once you have implement the HTTPS, अब क्या होगा, a secure socket layer shell will be there. अब क्या होगा, इसमें जो भी आपका डेटा जाएगा, जो भी आपका डेटा जाएगा, इट विल बी इनक्रिप्टेड, इट विल बी इनक्रिप्टेड, encrypted by 256, encrypted by 256, SHA 256 encryption is there. So it is very 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 difficult for one to unlock the SHA 256. So it will take a lots of year just to encrypt कि क्या उसने किया. That's why इट इज पेड. ये जो चीज कोई देता है, एसएसएल जो लेयर लगता है आपका, एसएसएल जो लेयर लगता है, इट इज पेड. इसके रुपए लगते हैं. तो कोई आपसे हो सकता है कि एक साल के 3,000 रुपए ले, कोई हो सकता है आपसे 5,000 ले, कोई हो सकता है कि 9,000 रुपए ले. इट डिपेंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट HTTPS लेयर विल बी देयर एंड देयर इज अ सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 1 ईयर. यूजुअली 1 ईयर का आपका रहता है validity, because every year, why this validity of 1 year? Because every year new attacks are going to be introduced, so we have to keep on update. Just for update they are going to ask for the more money. फिर आपका एनालिसिस रहेगा, ट्रैफिक एनालिसिस, सॉफ्टवेयर अटैक है. इन दिस दे आर गोइंग टू इंजेक्ट सम malware into your system. तो इसीलिए हम कहते हैं आपका सिस्टम उसमें एंटीवायरस होना चाहिए. देयर शुड बी सम एंटीवायरस इन दिस. तो यू नो अबाउट वायरस. वायरस क्या होता है? प्रोग्राम दैट अटेम्प्ट्स टू डैमेज अस कंप्यूटर सिस्टम. इसका मतलब ये रहता है टू डैमेज. तो इसमें ये सब चीजें आपकी हो सकती है. तो जैसे इसके कुछ वायरस के एग्जांपल है, जैसे एक आपका ये भी आया था, वायरस आया था, आई लव यू वायरस, लव इसलिए था. स्टोन वायरस है एग्जांपल है. वॉर्म. वॉर्म का क्या होता है? जस्ट टू फुल योर सिस्टम. अब आपको फुल जो सिस्टम है उसका जो स्पेस है, इट इज गोइंग टू बी फुल. तो वो क्या करेगा, जैसे आपके सिस्टम का फुल ये करता है. यूजुअली इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी इफेक्ट, जस्ट इट विल अननेसेसरी क्रिएट मोर फाइल्स एंड इट विल फुल द स्पेस. जो भी अवेलेबल स्पेस है उसको रिड्यूस कर देगा. एग्जाम्पल क्या है? पोर्ट्रेट. टॉर्जन ये इंपॉर्टेंट है. ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता, बट ये क्या करता है? स्पाइंग करता है. सो first it will enter your system and it will look similar, and after some event it is going to be trigger.
हो सकता है आफ्टर एंटरिंग योर सिस्टम आफ्टर 1 मंथ इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, और आफ्टर 6 मंथ इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. जस्ट इट एंटर्ड योर सिस्टम, इनिशियली इट विल डू नथिंग, इट विल जस्ट सिट, एंड आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 मंथ इट विल स्टार्ट प्रोसेसिंग. आपके सिस्टम में आने के बाद फिर ये आपको प्रोसेस करेगा एंड इट विल गोइंग टू डू. हो सकता है कि आपका सिस्टम को रिमोटली एक्सेस दे दे. मे बी यू आर वॉचिंग ए मूवी, आप मूवी देख रहे हो, आपके सिस्टम में ये आ गया है, कुछ नहीं हुआ, 1-2 महीने चले गए, आप आपके सिस्टम को रिमोटली दे दिया. तो एंड आफ्टर हैविंग द रिमोट एक्सेस वो भी देख सकता है कि व्हाट यू आर डूइंग. ही कैन ऑल्सो चेक व्हाट यू आर डूइंग इन ए सिस्टम लाइक दिस. देन वी आर हैविंग द लॉजिक बॉम्ब. सो इसमें क्या होगा, this logic bomb entered in system and it will initially it will do nothing, but once a certain logic is being implemented in the system and after that it is going to be triggered only and only. ठीक है, फिर आपके कुछ हार्डवेयर अटैक्स वगैरह होते हैं. एंड व्हाट इज साइबर क्राइम, एक बार ये भी आ जाता है 1930 हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी यू कैन क्लियर कंप्लेन अगर कुछ हो जाता है. सो देर ऑल्सो यू कैन कंप्लेन. 1930 हेल्पलाइन नंबर है ना. So any fraud happen with you, any fraud happen with you, maybe I can say online fraud or any fraud on the UPI, कुछ भी आपके पास में fraud हो गया है, so here you can also report any कुछ आपके पास में fraud हो गया, any fraud you can have happen with you, so here you can also report the fraud. तो जो भी आपका fraud वगैरह है इसको भी यहाँ पे आप report कर सकते हो. तो ये this is a portal initiated by government of India. ठीक है. Cyber espionage. What is cyber espionage? It is the art or practice of obtaining the secret information without the permission and knowledge of the holder of the informations. ठीक है, तो ये एक वर्ड है, ये कीवर्ड है. एग्जाम में हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसको याद कर लो. साइबर एप्सोनेज, व्हाट इज द साइबर एप्सोनेज? So he will give you 4 options and he will ask you what is the correct definition of the cyber espionage. For the different type of firewall we have made a separate video, एक वीडियो है उसमें we have already discussed what are the different type of firewalls are there and what is the functionality of each firewall, so that video you can also watch. इसमें उसमें अपन अच्छे से चीज डिस्कस किए हुए. अब इसके बाद क्या है, कुछ आपके लॉस वगैरह भी आए थे. ठीक है, कुछ लॉ वगैरह भी थे. एग्जाम में लॉ नहीं आते यूजुअली. in the exam there is no, you can say they don't ask for the law, but just for your जनरल इंफॉर्मेशन और जनरल अवेयरनेस आप इन लॉ को भी आप याद कर सकते हो कि भाई किस सेक्शन में कौन कौन सी चीजें लिखी गई है. सेक्शन 66 में क्या, सेक्शन बी में क्या, सेक्शन 66 में क्या है. ठीक है, अगर आप कोई भी साइबर क्राइम वगैरह आप करते हो तो उसमें क्या हो सकता है. सो दे कैन गिव यू 3 year इम्पेजमेंट और फाइन अप टू द 5 लाख और बोथ. 3 साल की आपको जेल भी हो सकती है और आपको 5 लाख का फाइन भी हो सकता है, या दोनों भी आपको हो सकते हैं. अगर आपने कोई कुछ और किया, उसके ऊपर आपको कुछ और कर दिया है, तो अलग-अलग जो सेक्शन, कितना आपने कोई भी क्राइम किया है, उसका क्या, उसके हिसाब से आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है. ठीक है, तो अपना आईपीसी जो कोड है 1980, उसके अंदर भी इन सब चीजों को डिफाइन किया गया है. अब देखो, जो चीज ऑनलाइन हो रही है उसके लिए हमें लॉ चाहिए, उसके लिए भी लीगल लीगल लॉ चाहिए. क्योंकि हम कोई भी इंडिया में कुछ भी हो रहा है तो उसको लॉ के अंदर ही लेके आओगे. जैसे आपका आता है साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग या आपका कोई भी हरासमेंट. तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई विल गिव यू एग्जांपल. एग्जांपल लेते हैं. सो दिस इज रोड, एक रोड है, एक रोड है. यहाँ पे एक लड़की जा रही, देयर इज अ गर्ल विच इज गोइंग. ठीक है, दिस इज अ गर्ल एंड दिस इज यू. अब रोड पे अगर आपने इस लड़की के साथ कुछ मिसबिहेव किया तो व्हाट शी विल डू, शी विल फाइल अ कंप्लेन इन द पुलिस एंड दिस पुलिस इज गोइंग टू बी अरेस्ट यू बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. अब यही चीज आपने ऑनलाइन कर दी. मे बी यू आर यूजिंग टेलीग्राम, मे बी यू आर यूजिंग फेसबुक, तो वहां पे भी उसकी कोई आईडी होगी लड़की की, इज आईडी ऑफ गर्ल, एंड मे बी यू आर हियर एंड मे बी यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, सो शी कैन रिपोर्ट ऑल्सो इन द पुलिस.
अब ये जो चीज हो रही है क्या हो रही है, वर्चुअल हो रही है, ये जो चीज क्या वर्चुअल है। अब कोई भी चीज वर्चुअल हो रही है उसके लिए भी हमने अब क्या लेके, इन इंडिया वी हैव लॉस। वे इन चीजों के हम लॉ के अंदर लेके आएंगे, तभी तो पुलिस उसमें उसमें काम करेगी। पुलिस किस पे काम करती है, लॉ पे करती है। कोई भी आपने अनलॉफुल एक्टिविटी की तो ही तो पुलिस आपको लेगी। इफ यू हैव डन समथिंग अनलॉफुल देन ओनली police is going to take the action for you. So that's why the things which is happen in the virtual world, कोई भी virtual world या कोई भी online हो रहा है, so for that also we are having the laws. So that's why कोई भी आपने चीज किया, so सेम चीज आपको वहां पे लगेगी, तो सेम लॉज वगैरह भी आपके एप्लीकेबल वगैरह हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आता है डिजिटल फॉरेंसिक, ये भी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, या आपके इंटरव्यू के अंदर भी आ जाता है, व्हाट इज द डिजिटल फॉरेंसिक। अब देखो, फॉरेंसिक मतलब क्या, व्हाट इज द फॉरेंसिक। इट मीन्स आपने किसी का मर्डर कर दिया, have done some murder, ठीक है। अब what the police will do, it will initiate the forensic report. Now you have done the murder इन ऑनलाइन वर्ल्ड, आपने ऑनलाइन वर्ल्ड में मर्डर कर दिया, इट मीन्स यू हैव डन सम साइबर फ्रॉड, आपने कुछ कर दिया, साइबर फ्रॉड कर दिया, साइबर फ्रॉड। सो द साइबर फ्रॉड दैट यू हैव मिटिगेट, आपने किसी बैंक की वेबसाइट पे अटैक किया, वहां से आपने 100 CR रुपीज निकाल के आपने इधर उधर कर दिए, सो दिस यू हैव डन समवे। सो द डिजिटल फॉरेंसिक विल बी, देन दे आर गोइंग टू चेक किस आईपी एड्रेस से आपका आया था पैकेट, व्हाट आर द थिंग्स कंटेन द आईपी एड्रेस। सो जी आईपी कहाँ पे है, इसका मैक एड्रेस कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है, मैक एड्रेस है तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है, ये लैपटॉप कहाँ के, इसका सीरियल नंबर क्या है, ये किस शॉप से इशू हुआ था, हु इज द ओनर, अगर यहाँ पे लॉगिन हुआ था तो किसकी आईडी थी। सो दिस इज अ डिजिटल फॉरेंसिक, ठीक है। सो दिस सेम थिंग व्हिच हैपन इन द फॉरेंसिक, सेम इज गोइंग टू हैपन इन द डिजिटल फॉरेंसिक। तो व्हाट दे आर गोइंग टू चेक, तो इसमें हेडर एनालिसिस हो सकता है, बेट टैक्टिस है, सर्वर इन्वेस्टिगेशन है कि कौन सा अटैक हुआ था, उस अटैक में ऐसा क्या था, व्हाट इज हैपन इन, व्हाट इज देयर इन द पैकेट, व्हाट दिस डन इन द सर्वर। देन इन्वेस्टिगेशन है, सॉफ्टवेयर एम्बेडेड है, सेंडर मेल फिंगरप्रिंट है, ईमेल के अंदर भी आपके कुछ टूल्स आते हैं, माईटेक मेल व्यूअर है, ओटीएस और पीटीएस व्यूअर है, ईमेल ट्रैक प्रो है। तो देयर आर सम टूल्स आल्सो अवेलेबल ऑन द सिस्टम फ्रॉम विच वी कैन ट्रैक डाउन, ठीक है। कि लेट सपोज योर लॉगिन, जैसे आपने यू हैव लॉगिन विद द जीमेल, तो आपका जीमेल किस किस आईपी एड्रेस से लॉगिन हुआ था, एट विच टाइम इट इज लॉगिन, ठीक है। सो दीज आर द टूल, तो ये चीज है, दीज आर सम साइकिल्स फॉर द डिजिटल फोरेंसिक कलेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, मीडिया, data, information, then we are going to collect the evidence. Just this is not so much of important. These are the type of the forensic, but it is not important. You can skip it. तो encryption होता क्या है, that you already know what is encryption. मोबाइल आपका टैक्स वगैरह है, पीडीए है, पोर्टेबल स्मार्टफोन, ये सब चीजें क्या, यू नो दिस ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो यू नो अबाउट malware, यू नो अबाउट वायरसेस, यू नो अबाउट worms वगैरह क्या है, स्कल टॉर्जन, वॉर, मॉस्किटो, बार्डन टॉर्जन, सो दीज आर सम अटैक्स। व्हाट इज द denial of service, you already know। ओवर बिलिंग अटैक क्या है, स्टूफ पीडीपी अटैक क्या है, सिग्नल अटैक्स क्या है, यू ऑलरेडी नो। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स वगैरह आजकल बहुत हो रहे हैं, सो व्हाट इज दिस फ्रॉड एंड हाउ दिस हैपन, सो दिस थिंग। आजकल जैसे आपने एटीएम में भी देखा होगा, सो जैसे आप एटीएम पे गए, सो देर इज अ डिवाइस विच इज गोइंग टू रीड। अब यहाँ पे क्या करेगा, समवन इज गोइंग टू प्लेस अनदर रीडर, so this reader is a fake reader, this fake reader will clone your card, this fake reader will clone your card, so the ATM, the insert that you are going to put, it is going to get clone also, maybe it can use it later on, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो कि धीरे धीरे आपकी जो चीजें हैं उनमें और अटैक्स वगैरह आ रहे हैं, ये हो गया है, ईमेल वगैरह है,
तो ये इतना सा इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लग रहा है। अब अपन एमसीक्यू देख लेते हैं, तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बिफोर मूविंग अहेड विद एमसीक्यू, एक लास्ट में जो चीज़ है वो भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। So I believe that you know what is cryptography, you know what is symmetric key and asymmetric key. If you don't know, I will explain also here. So this is the difference. So first I will explain. In symmetric key, only single key is used for locking and unlocking. In asymmetric key, we are having the dual key. Okay. So we are having a public key and a private key. Okay. तो ये important है. This is important. आई वॉन्ट यू जस्ट रीड इट, आई विल गिव यू 1 मिनट, इसमें याद कर लेना। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये एल्गोरिथम। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अंडर एसिमेट्रिक एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अंडर सिमेट्रिक एल्गोरिथम। दिस लाइन इज सो मच इंपॉर्टेंट। So I just want you, I will give you just 2 minutes, just read it. Okay, so I believe that you have read all the things. Now we are going to move with the MCQ questions. ठीक है? So we have seen this thing. So our uh, theory part, it is little bit complete. See, uh, theory is so much of long, so that we are going to cover in a separate video. But अभी तक आपने देखा तो इसे basic idea that you have. Okay. Now let's see some basic questions. Then we will see the advanced questions also. सो आईओटी क्या मतलब क्या होता है? इट इज इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है। वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो व्हाट इट डू, इट जस्ट you can say give you anonymity, it make you anonymous over the internet. What is the use of firewall? Basic firewall just to filter and control the network traffic. ठीक है। अब you have received some email and is going to ask some information, so that is a phishing attack. तो phishing attack में क्या होता है? It is a type of social engineering. साइबर स्पेस क्या है? फिक्शनल कंसेप्ट। ठीक है। वीपीएन का क्या होता है? इट गिव यू anonymous over the internet। ठीक है। द टर्म यूज टू डेलिबरेट स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, इसको क्या कहते हैं? डिसइंफॉर्मेशन होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। याद कर लेना, इट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। समटाइम इट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो व्हाट आर द मेन थ्रेट? सो मॉलवेयर। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। What is the goal of cybersecurity? Just to protect, just to give you CIA. HTML full form hypertext markup language। ठीक है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज ऑन द क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड पे क्या होता है? आपका जावास्क्रिप्ट यूज किया जाता है। रोल ऑफ वेब सर्वर जस्ट फॉर होस्टिंग एंड वेब कंटेंट। द टेक्नोलॉजी दैट अलाउ द रियल टाइम बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन अ वेब। अब देखो, जब रियल टाइम कर दिया और बाई डायरेक्शनल कह दिया, तो इट इज वेब सॉकेट, अदरवाइज इट इज एजेक्स। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। एजेक्स क्या है? आपका सिंगल डायरेक्शन। तो देर इज एवरी रिक्वेस्ट फॉर एवरी रिस्पॉन्स, बट इन वेब सॉकेट दिस इज नॉट मैंडेटरी, सो बोथ कैन शेयर एट द रियल टाइम विदाउट मेकिंग एनी रिक्वेस्ट। The protocol that commonly used for the
सिक्योर ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट कौन सा यूज होता है? HTTPS। द मेन पर्पस ऑफ आईपी एड्रेस क्या है? आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना हर एक डिवाइस को। इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग SMTP यूज किया जाता है। सो समवन इज distinguished जैसे trustworthy, so which kind of attack? It is a phishing attack। तो जो मोजिला ने जो ब्राउजर लेके आया था कौन सा था? फायरफॉक्स था। द टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज टू क्रिएट एन वेब डॉक्यूमेंट क्या यूज किया था? HTML यूज किया जाता है। द टर्म क्लिक जिसको बनता है हाइपरलिंक बनता है ए, इसका होता है ए टैग, एंकर टैग भी कहते हैं इसको, एंकर टैग भी कहते हैं। When was the first message sent over the ARPANET? ARPANET पे कब भेजा गया था? 1969 पे। The technology used to create a web browser called World Wide Web, इसने किया था मोजिक ने। The term for use for practicing connecting different computer network from the internet, internetworking. The primary purpose for the original effort to support the military communication during the war time। देखो कोई भी चीज था पहले यूएसए लेके आया था, यूएसए लेके आया था चीजों को, उसने उसको लगा कि ठीक है चलो मेरा काम हो गया, तो उसने इंटरनेट को दे दिया, तो इसने लोगों को दे दिया। जैसे आपका जीपीएस है, जीपीएस भी आप यूज में लेते हो, तो शुरू में लेके हु ब्रिंग दिस जीपीएस, सो फर्स्ट यूएसए यूज द जीपीएस एंड आफ्टर दैट उसको लगा कि चलो ठीक है ये अपन वर्ल्ड को देते हैं, उन्होंने चलो वर्ल्ड को दे दिया। जो आउटडेटेड चीजें हैं वो धीरे धीरे करके अपन को मिलती गई। आईपी लोकेशंस वगैरह कौन मेंशन करता है? आई कैन मेंशन करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साइबर क्राइम क्या है छोड़ो, ठीक है। दिस इज अ साइबर क्राइम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द टर्म ऑफ साइबर क्राइम इन विच क्रिमिनल यूज डिसेप्टिव ईमेल और वेबसाइट जस्ट टू ट्रिक इंडिविजुअल फॉर रिलीविंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब इसमें देखो थोड़ा थोड़ा आपको ऑप्शन मिलते जुलते हैं, फिशिंग है, स्पैमिंग है, हैकिंग है, वायरल है। तो ऑप्शंस आर लिटिल बिट रिलेवेंट, सो आंसर विल बी द फिशिंग। ये इजी क्वेश्चन है। क्राइम इन्वॉल्व लीगली कॉपिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ कॉपीराइट डिजिटल मटेरियल। तो डिजिटल मटेरियल क्या है? ये डिजिटल प्राइवेसी, दिस इज द इलीगल। तो आपने देखा होगा बहुत सारे यूज लोग हैं जो टेलीग्राम पे जो किसी का भी पेड मटेरियल है, दे आर गोइंग टू शेयर ऑन दिस। तो ये क्या है? ये दिस इज ऑल्सो अ फ्रॉड। तो अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो आपकी आईडी है, आपकी आईडी फोन से लिंक है, आपका फोन आधार कार्ड से लिंक होगा या किसी और से भी लिंक होगा, तो दे कैन इजीली आइडेंटिफाई कि किसने किया है। ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डू नॉट शेयर एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी ओवर एनी मीडिया ओवर द इंटरनेट, क्योंकि हर चीज का लॉग होता है। बॉटनेट क्या है? जो रिमोट अटैकर्स यूज करते हैं फॉर द डीडोस अटैक। ठीक है, आपने किसी को ऑनलाइन मतलब किसी को हरास किया तो वो किस में आ जाएगा? वो आपका साइबर बुलिंग में आ जाएगा। कोई भी अटैक वगैरह किया जाता है, मेन उसका क्या होता है कि फाइनेंशियल गेयर होना चाहिए। किसी को आप ऑनलाइन फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो वो किस में आएगा? साइबर डिफेम में आएगा। मान लो कि ऑनलाइन आके आपने कह दिया कि जो लक्स की साबुन है उससे तो मैं नहीं हो रहा, गोरा नहीं हो रहा। लक्स की आपने कोई साबुन यूज किया, आपने कहा मैं तो इससे गोरा नहीं हो रहा, तो आप ऑनलाइन आके किसी को डिफेम कर रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा? साइबर डिफेम में आ जाएगा। ठीक है। प्राइमरी लॉ क्या है? जस्ट टू एस्टेब्लिश, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, इसमें तो कुछ अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ malware डिस्क्लेम itself a legitimate सॉफ्टवेयर बट कंटेन a malicious कोड? कौन सा रहेगा? ट्रोजन हॉर्स। रैंसमवेयर क्या करेगा? इनक्रिप्ट योर फाइल एंड आस्क फॉर द रैंसम जस्ट टू डिक्रिप्ट द फाइल्स। इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2000 आया था वो इसलिए आया था टू प्रोवाइड द लीगल रिकॉग्निशन, जो लीगल रिकॉग्निशन देनी है तो जो ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं या कुछ बुलिंग वगैरह उसके लिए। इस आईटी एक्ट में फिर क्या होता है, धीरे धीरे अमेंड होते रहे, नई नई चीजें आती रही।
ये कुछ चीजें हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। ये है एईएस, क्या है? एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। साइबर स्पेस किसने नाम दिया था? विलियम गिब्सन ने नाम दिया था। वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर कौन था? टिम बर्नली। स्टैंडर्ड आईपी प्रोटोकॉल क्या है? टीसीपी आईपी। सीआईए में कौन सी चीज नहीं आती? सीआईए में आपका ये देखो, फुल फॉर्म पूछा था, आ गया क्वेश्चन। ऑथेंटिसिटी नहीं आता। एचटीटीपी फुल फॉर्म क्या है? फ्रंट एंड के कौन से टेक्नोलॉजी नहीं, तीनों होता है। आईसा का क्या फुल फॉर्म है? अल्फानेट का फुल फॉर्म क्या है? ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देख लेना। ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा दोस्त। दिस वर्ड यू नीड टू रिमेम्बर। व्हाट इज फिशिंग? यू नो। व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल? यू नो। व्हाट इज DDoS attack? We have discussed. What is multi-factor authentication? We have discussed. IT एक्ट कौन सा था? 2000 वाला था। ये थोड़ा सा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इंडिया में IT एक्ट किस दिन आया था? इंडिया में IT एक्ट आया था 2000 में आया था। अब ये देखो, एक वर्ड आ ये अच्छा क्वेश्चन है। मीन्स द सिक्योरिटी ऑफ डेटा फ्रॉम टेम्परिंग बाय अनआइडेंटिफाइड यूजर। तो CIA का फुल फॉर्म पूछ लो भाई, क्या चीज है? तो इंटीग्रिटी है। नॉन बेलेबल, टैंपरिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा ऑफेंस है? नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब आपको बेल नहीं मिलेगी इसके अंदर। ऑर्डर अगर किया पास तो किस में बिफोर में जाएगा? साइबर ट्रिब्यूनल के अंदर। ऐसे में फुल फॉर्म क्या है, याद कर लेना। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर। ये कुछ फालतू फालतू क्वेश्चन है। ये इजी इजी चीजें, फिशिंग अटैक क्या है, आप कैसे डेटा को सिक्योर कर सकते हो, वाईफाई क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल, देखो VPA होता है आपका, VPA 2 है। SSL आपका इसमें नहीं आता है। ये हटाते हैं, ये ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस है ये ठीक है थोड़े से ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका मुझे आंसर बताओ, क्वेश्चन 16 का। VPA क्या है? क्वेश्चन 16 का आंसर बताना है यहाँ पे दोस्त। ABCD, ABCD में क्या आंसर है क्वेश्चन 16 का? क्या बात है। देखो, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। When information is read or copied by someone not authorized to do तो result is what? अब देखो, CIA आपको है पता है,
आपने इंफॉर्मेशन रीड की बट नॉट अथॉराइज है, तो किसकी बात हो रही है? कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो रही है। इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई हो गया, तो इसमें क्या हो गया? इंटीग्रिटी लॉस हो गया। क्या हो गया? इंटीग्रेशन। इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज और इरेजेबल, द रिजल्ट इज नोन एज। इसका बताओ, क्वेश्चन 19 का आंसर बताओ। 19 का क्या आएगा? क्वेश्चन 19। ठीक है, 19 का बताना है। इन्हें सब सी कह रहे हैं। अवेबिलिटी। क्या बताओ? क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 का। नाइस, ठीक है, सी इसका सही है। अटैक। ये क्या है? ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। An organization employ hundreds of office workers to use the computer to perform their task. What is the best plan for informing employer about the security issues? क्या है? आप उनकी अवेयरनेस की ट्रेनिंग ले लो। भैया इतने एम्प्लॉय है, उनको आप एक ट्रेनिंग दे दो। ठीक है। ऑथेंटिकेशन मतलब वो क्या है? होना चाहिए पता। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या है? हल्का बहुत पता होना चाहिए। व्हाट इज साइफर? पता है? ये बताओ। क्वेश्चन 36 का, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन 36। यस, ठीक है, आपको है पता, यू नो। एसिमेट्रिक की, द प्राइवेट की इज केप्ट बाय द सेंडर। यस, आंसर ए है। यहाँ पे बी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। आंसर आपका ए है। ठीक है, आंसर इज ए। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इट बिकम सीक्रेट टेस्ट और हाइपोटेक्ट वैकेंसी। इन डैश साइफर सेम की इज बीइंग यूज्ड बाय सेंडर रिसीवर। वही कौन सा है आपका? सिमेट्रिक की है। सिमेट्रिक में आपका दोनों यूज सेम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ आंसर में रॉन्ग है। वो आंसर कुछ कुछ रॉन्ग है यहाँ पे। एसिमेट्रिक की द सेंडर यूज द प्राइवेट की यूज होता है इसके अंदर, पब्लिक की नहीं करता है, डिक्रिप्ट में होता है। रिसीवर रिसीवर क्या यूज करता है? पब्लिक की यूज करता है। इसका आंसर बी है। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 46 का बताओ। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, क्वेश्चन 46। सिक्स का सी, क्या बात है? क्वेश्चन 46 का आर एस, एक बार देखो, यहाँ अपन ने देखा था आर एस ए किसके अंदर आया था? एसिमेट्रिक के अंदर आर एस ए आ रहा है।
तो किस में आ जाएगा, RSA किस में आ जाएगा, सी के अंदर हो जाएगा, RSA। यस। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन 47। अच्छा क्वेश्चन है। द साइज साइफर इज अ डैश साइफर विच हैज द की ऑफ 3। तो इसमें क्या होगा, शिफ्ट होंगे, आपके शिफ्ट्स वगैरह यूज की जाती है। ठीक है, तो वी हैव सीन सम बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस। अब देखो, इसके साथ साथ क्या एग्जाम में जो आपके अटैक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, साइबर अटैक्स के क्वेश्चन, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपके ये जो अटैक्स वगैरह गिवन है, तो वो क्या करता है कि उन अटैक्स के भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ये वाला अटैक था, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अटैक है। तो अटैक्स रिलेटेड भी आपको देखना है। फिर वो क्या करता है, आपके जो फायरवॉल सिस्टम में यूज होती है, फायरवॉल होती हैं, उनके क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो जो डिफरेंट टाइप के आपके फायरवॉल्स होती हैं, उनसे भी आपको क्वेश्चन पे पूछा आता है। क्वेश्चन में जैसे आईडीएस है, आईपीएस है, इनके क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, भाई कहाँ यूज होता है, ये आईडीएस क्या है, वो है। इनके क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, जो वायरस है, वायरस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंटीवायरस के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फायरवॉल्स के आ जाते हैं, आईडीएस एडीएस भी आपके जो क्वेश्चंस है, वो आपके वो भी आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस और अपन देख लेंगे नेक्स्ट के अंदर। यहाँ से क्या बेसिक आइडिया आपको लग गया, या ठीक है, ये जो चीजें होती हैं यही है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पेज है। इफ यू वांट ए स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पेज है इस वीडियो का। ठीक है दोस्तों, आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो। कैन यू शेयर द पीडीएफ? यस यस श्योर, आई विल शेयर दिस पीडीएफ। व्हाट इज सीआरएफ अटैक? सीआरएफ होता है आपका क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रॉजरी अटैक। सीआरएफ अटैक होता है क्रॉस साइट फ्रॉजरी अटैक। तो इसमें होता है क्या है, तो वी आर गोइंग टू मेक ए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो जब आपकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सीआरएफ प्रोटेक्शंस लगाते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो विल इम्प्लीमेंट द सीआरएफ प्रोटेक्ट क्रॉस साइट सर्वर अटैक। तो हाँ, एक चीज और, चलो, इसने अच्छा क्वेश्चन दोस्त ने पूछा। ओसेप 10, ओसेप 10 जो वर्नेबिलिटी है, इसको देख लेना, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इसके आते हैं, ओसेप 10 वर्नेबिलिटी। ये जो अटैक्स रहते हैं ओसेप 10 वर्नेबिलिटीज में, ये इनसे क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं। तो ये भी आपको देखने पड़ेंगे, ये जितने अटैक्स हैं, ये देखने पड़ेंगे भाई क्या चीज है। इंजेक्शन क्या है आपका, स्किल इंजेक्शन क्या है, एक्सेस क्या है, ठीक है, ब्रोकन टोकन एक्सेस क्या है। तो ओसेप 10 वर्नेबिलिटीज आपको देखनी पड़ेंगी। गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको कुछ नहीं करना, ओसेप 10 वर्नेबिलिटीज आपको लिखनी है। बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हो, या जो दूसरी वेबसाइट्स है उन पे भी आप देख सकते हो। उनमें अच्छे से बता रखा है कि ओसेप की जो 10 वर्नेबिलिटीज है वो कौन कौन सी है, एंड कैसे उस चीज को मैनेज करना है। इंजेक्शन क्या है, इनसिक्योर डिजाइन क्या है, विस्कॉस वर्नेबिलिटीज क्या है, सॉफ्टवेयर डेटा इंटीग्रिटी फेलियर क्या है, ये सब चीजें, ये सब आपको देखनी पड़ेंगी। अब आता है आपका सीआरएफ अटैक। ठीक है, मेनली आपके जो वेबसाइट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे आता है। देखो, गेट सिनेरियो, तो इन एप्लीकेशन वाज डिजाइन टू गेट रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर पैरामीटर। अब यहाँ इसने बोला कि अकाउंट कौन सा है, बीओबी का अमाउंट कितना है, 100 है, सो दिस इज गेट यूआरएल। सो मलेशिया ने अब क्या कर लिया, रिक्वेस्ट देख लिया, तो इसने अब क्या कर दिया कि इस यूआरएल को चेंज कर दिया। सो इंस्टेड ऑफ 100 ही हैज पुट 1000। तो ये क्या हो गया, आपका जो गेट अटैक है, तो जो गेट रिक्वेस्ट है उसमें इसने चेंज कर दिया, चीजों को फेक कर दिया। अब क्या कर दिया इसने, एक इमेज बना दी, ही हैज क्रिएटेड ए इमेज, and on the image, this image is embedded in your web browser, so by some you can say injection, so he has integrated this image। तो आपको एक वेबसाइट में इमेज दिखी, आपने उस इमेज पे क्लिक कर दिया, जैसे इमेज का ऑन क्लिक इवेंट है,
इमेज के ऑन क्लिक इवेंट या एसआरसी पे वो जो गेट रिक्वेस्ट है उस गेट रिक्वेस्ट को क्लिक करा दिया, उस इमेज पे गेट रिक्वेस्ट को क्लिक करा दिया। देखो, इन सीआरएफ क्रॉस साइट रिक्वेस्ट forgery, attackers use force end user to execute unwanted action in an application which is currently authenticated within a little help of social engineering। ठीक है, अब क्या करेगा, आपका जैसे लॉगिन है, योर सिस्टम इज लॉगिन, लेट सपोज यू हैव लॉगिन इनटू इंटरनेट बैंकिंग, यू हैव लॉगिन, सो द अटैकर अब क्या करेगा कि सम सोशल इंजीनियरिंग की हेल्प से कुछ आपको लिंक देगा या जो वेबसाइट या कुछ आपको अलग से देगा। अब आपका जो सेशन है वो लॉगिन है, योर सेशन इज एक्टिव। अब क्या करेगा, कोई कहीं से भी आपको कोई लिंक देगा, उस लिंक पे क्लिक कराएगा, सो योर सेशन इज एक्टिव, so the link that he or she has sent, so it is already authentication by you as you have already logged into internet banking। तो वो जो लॉगिन में वो जो यूआरएल है वो ऑलरेडी ऑथेंटिकेट हो जाएगा। जैसे कि इसने देख लिया कि यार ये जो गेट रिक्वेस्ट है इससे रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं, ये चेक कि ये जो गेट रिक्वेस्ट है इससे रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। सो लेट सपोज आई हैव लॉग इन इनटू माय वेबसाइट, मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया एंड सम हाउ ही हैज गिवन मी दिस इमेज। हो सकता है कि मेरे को एक मेल आया, मेल पे एक इमेज आ गया, मुझे लगा कि चलो इमेज, ये इमेज पे क्या है, जैसे ही मैंने इस इमेज पे क्लिक किया तो क्या हो गया, दिस यूआरएल गॉट एग्जीक्यूटेड as I have already authenticate into my web browser, so I have already logged in into internet banking, so whatever the URL I am going to have is been already authenticated, तो ये क्या होगा, ये चीज भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। दिस इज सीआरएफ अटैक। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। संदीप? Yes, yes, sure, I will share this PDF to you, buddy, in the in channel I will share this request। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।